کہ ساری عزت و سر جلال اس کے نام کو جائے جو اپنے خادموں کو زور بخشتا ہے، جو اپنے خادموں کو حکمت بخشتا ہے، جو اپنے خادموں کو دنائی بخشتا ہے، تاکہ وہ اپنے لوگوں میں اچھا چرواہا بن کر ان کو اچھا چارہ مہیا کرے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، جو کمیاں میرے اندر تھی خدا ان کو جانتا ہے، خدا نے ان کمیوں کو پورا کیا، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ ڈے بائی ڈے وہ بڑھے گی، کم نہیں ہوگی، کیونکہ جو برکت خداوند دیتا ہے وہ ملٹی پلائی ہوتی ہے، مائنس نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں اس بات کو۔ آج خدا نے جو کلام مجھے دیا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اس کلام کا عنوان ہے خدا کی بادشاہی اور آپ کی تیاری۔ ہاللیلویا۔ کیا ٹاپک ہے آج کا؟ اور آپ کی تیاری۔ خداوند یسوع جیسے آسمان پر گئے اسی طرح وہ بادلوں پر سے واپس زمین پر آنے والے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور اس کے بعد نئی زندگی کا آغاز ہوگا خدا کی بادشاہی میں۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کی بادشاہی کے لیے تیاری کریں، آپ اس کے آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، کیونکہ وہ دولہا ہے اور میں اور آپ اس کی دلہن ہے۔ جب شادی کے دن نزدیک آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دولہا اپنی تیاری کر رہا ہوتا ہے اور دلہن اپنی تیاری کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس نے اپنے دلہے کے پاس جانا ہے۔ یہ دنیاوی بات ہو رہی ہے، لیکن جو چیز آج ہم کلام میں سے سیکھ رہے ہیں یہ روحانی بات ہو رہی ہے۔ روحانی تیاری جو ہے وہ دنیاوی تیاری سے بہت مشکل ہے، کیونکہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی چیزوں میں کھویا رہتا ہے اور خدا کے کلام پر توجہ نہیں کرتا۔ لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ تو میرے کلام پر توجہ کر اور اپنی رخصتی کی تیاری کے لیے تیار ہو، کیونکہ بہت جلد میں نے اور آپ نے یہاں سے رخصت ہونا ہے، ہماری رخصتی ہونی ہے۔ اور جب رخصتی ہوتی ہے تو پھر مکلاوا بھی آتا ہے، آتا ہے نا مکلاوا، ہم نے بھی واپس آنا ہے۔ ہاللیلویا۔ 1000 سالہ بادشاہی کے لیے ہم نے اپنے خداوند یسوع المسیح کے ساتھ واپس آنا ہے اور اپنی پوری زندگی یسوع کے ساتھ گزارنی ہے۔ اس میں نہ تو گناہ ہے، نہ تو بیماری ہے، نہ تو تندرستی ہے، نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، بلکہ صرف عبادت عبادت اور عبادت ہے۔ ہر وہ بیماری، ہر وہ موت جس کا ڈر آپ کی زندگی کے اندر رہتا ہے، جب ہم دولہے کے ساتھ ہوں گے تو وہ ہماری حفاظت کرے گا، اور کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی بھوک، کوئی پیاس، کوئی ننگ، کچھ بھی باقی نہ رہے گا، بلکہ خوشی خوشی اور اطمینان ہی ہوگا۔ ہاللیلویا۔ ایمان رکھتے ہیں آپ اس بات پر کہ یسوع کی آمد کے بعد اس کی بادشاہی میں یہ سب کچھ نہیں ہوگا؟ ایمان رکھتے ہیں؟ تو کتنے اس بات کی تیاری کر رہے ہیں کہ وہ یسوع کے آنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں کر رہے تو یہ افسوسناک حالت ہے۔ اپنے یسوع کی آمد کی تیاری کے لیے، اپنے دولہے کے آنے کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو آج سے تیار کرنا شروع کر دیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے اور میرا اور آپ کا دولہے راجا بادلوں پر اپنے گھوڑوں رتھوں پر بیٹھ کر آپ کو لینے کے لیے آنے والا ہے۔ متی کی انجیل اس کا 22 باب اس کی پہلی 6 آیات کو ہم کلام مقدس میں سے اپنے لیے سنیں گے۔ جن کے پاس بائبل ہے وہ اپنی بائبلز کو کھولیں، اور جن کے پاس موبائل ڈیجیٹل بائبلز ہیں آپ ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہر لفظ کو غور سے سنیے گا۔ بیٹی سانکا سے میں کہوں گا وہ کھڑی ہو اور اپنا چہرہ کلیسیا کی طرف کریں اور تلاوت کریں۔ اور یسوع نے پھر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اپنے نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہوئوں کو شادی میں بلا لائیں، مگر انہوں نے آنا نہ چاہا۔ پھر یسوع نے اس نے اور نوکروں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوئوں سے کہو کہ دیکھو میں نے ضیافت کی تیاری کر لی ہے، میرے بیل اور موٹے موٹے جانور ذبح ہو چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے، شادی میں آؤ۔ مگر وہ بے پرواہی کر کے چل دیے
कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। आमीन। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो। आमीन। बहुत सारे लोग आज फानी चीजों की तलाश में हैं, और बहुत सारे लाफानी चीजों की तलाश में हैं। फानी चीजें दुनिया के लिए और लाफानी चीजें आसमान के लिए। हालेलुया। फानी चीजें किस चीज के लिए हैं? दुनिया के लिए, और लाफानी चीजें आसमान के लिए, आसमान की दुनिया के लिए, आसमान की बादशाही के लिए। फानी चीजें इस दुनिया की बादशाही के लिए और लाफानी चीजें इस दुनिया के लिए, यानी खुदा की बादशाही के लिए। और आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जिंदगियों के अंदर सिर्फ फानी चीजों के पीछे भाग रहे हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया की हर चीज उन्हें मिल जाए और वो उसमें तसल्ली पाते हैं, इत्मीनान पाते हैं। वो समझते हैं कि दुनिया पे मेरे पास घर, बंगला, मकान, सब कुछ है, मैं बहुत खुश हूं, मैं यहां पर बहुत तसल्ली में हूं। लेकिन अजीजों, जो लोग लाफानी चीजों की तलाश में हैं, अक्सर हकीकी खुशी उनके पास है। हकीकी खुशी उनके पास है जो लाफानी चीजों के पीछे है। दुनियावी नहीं, आसमान की चीजें, लाफानी चीजें। जो लोग ईमानदारी और सच्चाई के साथ उसकी बारगाह में आकर उसके हजूर अपने घुटनों को टेक कर उसकी परस्तिश करते हैं, उसकी सताइश करते हैं, उसकी नेमतों का, उसकी बरकतों का, उसकी हजूरी में शुक्रगुजारी के हदिये नज़राने पेश करते हैं अपने लबों की कुर्बानी से, तो खुदा उनको बरकत देता है, खुदा उनकी दुआओं का जवाब देता है। और ऐसे लोग भी हैं जिनके अंदर तसल्ली और इत्मीनान और खुशी नहीं है, क्योंकि उनके पास दुनिया में बहुत कुछ है लेकिन वो उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इतना कुछ हो और इंसान उसे इस्तेमाल ना कर सके तो ऐसे होने से ना होना ही बेहतर है। वो इंडिया की वो एक शादी हो रही थी ना, क्या नाम था उनका, अंबानी। कितना अमीर इंसान है वो, इतना अमीर है कि उसके पास इतनी दौलत है कि उसको पता ही नहीं है कि उसके पास दौलत कितनी है। लेकिन आपको पता है उसके जो बेटा है वो बीमार है, वो तंदुरुस्त नहीं है, वो बीमारी की हालत में है। वो उस रुपए पैसे को अपनी जिंदगी के ऊपर खाने पीने में एंजॉय नहीं कर सकता, बल्कि वो लोगों में बांटता फिरता, शायद उसके लिए कोई आसानी पैदा हो जाए। अजीजों, पैसा बांटने से अगर जिंदगी मिलती तो हर दौलतमंद आज जिंदा होता, हर दौलतमंद आज जिंदा होता। कोई दौलतमंद दुनिया से ना जाता क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, वो दौलत से अपनी जिंदगी खरीद सकता था। लेकिन कलाम में लिखा है कि अमीर का खुदा की बादशाही में से गुजरना उतना ही मुश्किल है जितना सुई के नाके में से ऊंट का गुजर जाना। अजीजों, खुदा चाहता है कि आप जमीन पर दौलत मत जमा करें, बल्कि आसमान पर। जो लोग आसमान पर खजाना जमा करते हैं वो दूसरों के लिए भी बरकत का बाइस बनते हैं। लेकिन जो लोग जमीन पर खजाना जमा करते हैं वो दुनिया पर ही अपनी जिंदगी के ऐशो आराम की जिंदगी गुजार चुके, और फिर उनके पास ऊपर आसमान के ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि वो हर वक्त इसी चक्कर में रहते हैं कि वो किसी तरीके अपने लिए कुछ कमा ले, कुछ बना ले। लेकिन खुदा ये नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि आप ऐसे बटवे बनाए जिसको ना तो कीड़ा लगता है ना उस पे चोर नकब लगाता है। हालेलुया। और ये वो बटवे हैं जिसके अंदर रखी हुई तमाम चीजें आसमान पर है। प्रेज गॉड। तो दुनिया की चीजों को छोड़कर आसमान पर खजाना जमा करना शुरू करें। जो लोग दुनिया पर खजाना जमा करते हैं वो किसी के लिए बरकत का बाइस नहीं बनते। मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक बादशाह था, दौलतमंद, क्योंकि बादशाह दौलतमंद ही होते हैं, ढेरों जमीनों रकबों का मालिक।
बहुत सारे जानवर, बैल, अस्तबल उसके पास थे, और उसके अस्तबल में एक नौकर था जो बड़ा वफादार था और अच्छा तरीके से उसके घोड़ों की रखवाली करता, उनको चारा डालता, सब कुछ करता। बादशाह एक दिन उससे बहुत खुश हुआ और बादशाह ने उसे बुलवाया और कहा कि मैं तुझसे बहुत खुश हूं, मैं तुझे ये घोड़ा इनाम में देता हूं। और जो घोड़ा उसने अपने नौकर को इनाम में दिया, वो उस अस्तबल का सबसे जबरदस्त, ताकतवर और पावरफुल घोड़ा था। उस बादशाह ने उसे कहा, ये घोड़ा मैं तुझे इनाम में देता हूं और तू इस घोड़े को ले और इस पर बैठ, और जितना तू उसे दौड़ा सकता है इसको दौड़ा, जहां तक तू जाएगा वो सारी जगह मैं तुझे इनाम में दे दूंगा। एक घोड़ा उसे तोहफे में मिला और दूसरा उस बादशाह ने कहा, जहां तक तू उसे दौड़ा सकता है इसे दौड़ा, वो सारी जगह मैं तुझे दे दूंगा। वो सुबह तड़के तड़के उठता है, घोड़ा तैयार करता है और उस घोड़े पर बैठता है और घोड़े को दौड़ाना शुरू कर देता है। दौड़ाता है, जोर से दौड़ाता है, दौड़ाता, कभी चाबुक मारता है उसको, कभी टांग मारता है उसको, कभी क्या करता है और कभी क्या करता है, ताकि वो उसे ज्यादा से ज्यादा भगा सके, और जितना वो भगाएगा उतना ही वो उस जगह का मालिक बनेगा। वो उस दौड़ में इस कदर मगन हो गया कि उसने घोड़े को दौड़ा कर थका दिया। उसने कहीं उस घोड़े को नहीं रोका कि वो 2 मिनट आसरा करे और पानी पिए, क्योंकि बादशाह ने कहा था जहां तू रुकेगा वो जगह तेरी होगी, जहां तू भागता रहेगा जब तक वो जगह तेरी रहेगी। वो इस कदर लालच में भर गया कि उसने उस घोड़े की परवाह नहीं की, ना उसे पानी के लिए रोका, ना उसे खाने के लिए रोका, यहां तक कि वो खुद भी अपने साथ कुछ ना लेके गया, और ना उसने खुद कुछ खाया और ना उस घोड़े को कुछ खाने दिया। और आखिर क्या हुआ? वो घोड़ा भूख से, प्यास से गिर पड़ा और उसने अपना दम तोड़ दिया। और जैसे ही वो गिरा उसने अपना दम तोड़ा, और साथ ही उस इंसान ने भी जो उस पर बैठा था गिरा और अपना दम तोड़ दिया। अजीजों, आज मेरी और आपकी हालत कुछ ऐसी ही है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम दौलत के पीछे भागते रहें, दौलत के लिए कुछ भी करते, कैसे करके भी हम दौलत इकट्ठी कर लें, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमारे आखिरी अयाम किस वक्त है, किस वक्त यीशु अपनी बादशाही के लिए आने वाला है, किस वक्त वो आ जाएगा। लूका की इंजील 12 बाब और उसकी 16 और 21 आयत में से हम देखते हैं, यहां पर लिखा है, और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की जमीन पर बड़ी फसल हुई। बस वो अपने दिल में सोच कर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां मैं अपनी पैदावार भर रखूं। आगे सवालिया निशान है। उसने कहा, मैं यूं करूंगा कि अपनी कोठियों को ढाकर उनसे बड़ा बनाऊंगा और उनमें अपनी सारा अनाज और माल भर रखूंगा, और अपनी जान से कहूंगा, ए जान, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर, खा पी, खुश रह। और अगली बात गौरतलब है, लिखा है, मगर खुदा ने उससे कहा, ए नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा? हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है? यही हालत मेरी और आपकी है। हम हर चीज को पीछे करते हैं और अपनी दौलत कमाई के लिए हम भागते रहते हैं और हमें जरा परवाह नहीं होती कि खुदा की बादशाही का वक्त नजदीक आ गया है।
खुदावंद यीशु की दूसरी आमद का वक्त नजदीक आ गया है और हमें दौलत के पीछे नहीं भागना, बल्कि हमें अपनी रूह की फिक्र करनी है, क्योंकि लिखा है कि उससे मत डरो जो तुम्हारे बदन को हलाक करता है, बल्कि उससे डरो जो तुम्हारे रूह और बदन दोनों को हलाक कर सकता है। इसलिए अपना वक्त अपने खुदा को दें, अपना वक्त अपने खुदा के साथ गुजारें, अपना वक्त उसके रात साथ चलने में गुजारें। हनूक जो उसके साथ चलता था, लिखा है कि वो उठा लिया गया, वो खुदा का वफादार था। अभी जो हमने आयत पढ़ी मत्ती की इंजील मरकजी आयत, उसमें 15वीं आयत में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है, और वो क्या लिखी हुई है? 5वीं आयत, वहां लिखा है, मगर वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को और कोई अपनी सौदागरी को। बादशाह ने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को बुला लो, तो बुलाए हुए क्या करते हैं? उन्होंने परवाह नहीं की, उन्होंने कहा बेपरवाही की, रहन दो, असा नहीं आना, साढ़े को टाइम नहीं है, असी काम देना गए तो राती बच्चे भुखे मर जाएंगे। कलाम में लिखा है कि तू कल की फिक्र ना कर, क्योंकि कल अपनी फिक्र आप करेगा। आपको अपनी रूहानी जिंदगी के बारे में सोचना है। और ऐसा ही है, जब खुदा का खादिम, खुदा का ममसू हमें कलाम सुनाता है, वो हमें बताता है, तो हम क्या करते हैं? उसकी बात की बेपरवाही करके चल देते हैं। अगर सुनते हैं तो दूसरे कान से निकाल देते हैं, और खुदा के कलाम की आवाज को नहीं सुनते, और फिर उसी से कहने होले साडे कोलों केड़ी गलती हो गई, साडे घर ते बरकत ही नहीं आती। बुड़बुड़ाते हैं, खुदा से शिकायत करते हैं, खुदा से गिले और शिकवे करते हैं। ए नादानो, तुम उस कलाम को क्यों नहीं सुनते जो खुदा ने तुम्हारे लिए 2000 पहले से कलम बंद कर दिया। और उसमें लिखा है, सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और ये बात मुश्किल है, सच तो हमारी जिंदगी में है ही नहीं, तो हम आजाद कैसे हो सकते हैं? आजाद होने के लिए खुदा के सच्चे कलाम को पढ़ना, सुनना और उस पर अमल करने की जरूरत है। लिखा है कि वो बेपरवाह होकर चल दिए, और कोई अपने खेत को और कोई अपने सौदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। और बाकियों ने क्या किया? जो रह गए थे, जो बादशाह ने नौकर भेजे, यानी कि खुदा के खादम, बादशाह खुदा है और नौकर मैं, और बहुत सारे खादम जो खुदा भेजता है। जब हम खुदा के लोगों के घरों में जाते हैं, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता, खादम आया छुपते फिरते हैं, बादशाह ओनू ही गल्ला करते हैं, खादमीन को ही बातें करते हैं, खादमीन पे तोहमतें लगाते हैं, खादमीन को बताते हैं खादम अंजदा है, खादम अंजदा है। अपने आप पर हम गौर क्यों नहीं करते? जब हम किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो 5 हमें हमारी तरफ इशारा कर रही होती है। Who you are, तू खुद क्या है जो किसी खादम पर अपनी पेशन गोइयां कर रहा है? खुदा के कलाम में लिखा है कि उसके जो खादिम है वो उन्हें अपनी आंख की पुतली जानता है। खुदा ने कहा वो मेरी आंख की पुतली है, बाजू टांग हाथ खुदा ने नहीं कहा, आंख की पुतली, यानी कि सबसे नाजुक चीज जो इंसान के बदन में है वो उसकी आंख है। हल्का सा भी हाथ लगे ना तो पानी बहना शुरू होता है और आंख लाल हो जाती है। खुदा ने कहा मेरा खादम मेरी आंख की क्या है? पुतली। और क्या करते हैं लोग? उनको रद्द करते हैं, उनकी बातों को रद्द करते हैं। जो खुदा उनके मुंह में रखता, आपसे बात करता है, आप उनको बेपरवाही से अपने कान पे मार देते हैं। जब ऐसा करते हैं तो बरकत कहां से आएगी? बरकत नहीं आ सकती। बरकत तब आएगी जब हम उसकी फिक्र करेंगे, उसकी परवाह करेंगे, उसके साथ साथ चलेंगे। मरकस 8 आयत, मरकस की 8 बाब उसकी 33 से 34 आयत में देखते हैं, वहां पे क्या लिखा हुआ है? लिखा है, और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा?
और आदमी अपनी जान के बदले क्या दे सकता है? हालेलुया। इंसान के पास जान के अलावा कुछ भी नहीं है। आदमी दुनिया पे दौलत, इज्जत, शोहरत सब कुछ पाले, हर चीज उसके पास हो, लेकिन उसके पास यीशु ही नहीं होगा तो क्या फायदा? कलाम में लिखा है, आदमी अगर सब कुछ पाले और अपनी जान का नुकसान करे तो क्या फायदा? क्योंकि वो अपनी जान के बदले खुदा को क्या दे सकता है? हमारे पास खुदा को देने के लिए कुछ भी नहीं। हमारे पास जो कुछ भी है वो खुदा का दिया हुआ है, उसका एहसान है जो हमको वक्त पर मुहैया करता है। कलाम में लिखा है, चिड़ियों और तोतों और जो परिंदे हैं उनसे कई ज्यादा कदर किसकी है? मेरी और आपकी। खुदा अगर उन्हें बगैर बोए, बगैर काटे, बगैर कुछ किए हुए खुराक मुहैया करता है तो वो आपको क्यों नहीं करेगा? क्यों सबत के रोज चर्चिस के अंदर अटेंडेंस कम है? क्योंकि किसी को भी आसमान की बादशाही की फिक्र नहीं। वो सोचते हैं शायद यही बादशाही है। वो सोचते हैं कि दुनिया के ऊपर ही सब कुछ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको खुदा की बादशाही के बारे में पता ही नहीं है, और अगर पता है तो वो उस पर काम नहीं कर रहे। तो फिर उन्हें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा उन्हें? रोना और दांतों का पीसना। रोना और दांतों का पीसना। मरकजी आयत की तरफ वापस चलते हैं। वहां पे लिखा हुआ है और वो नौकर बाहर रास्ते पर जाकर, खुदा ने कहा बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन बरसगीदा थोड़े हैं। और बाकियों ने उसको, उनके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। बादशाह गजबनाक हुआ और उसने अपने लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। जिन्होंने खुदा के खादमों की आवाज नहीं सुनी, जो बुलाए हुए थे, अब उनकी बात नहीं हो रही। उनको क्या किया? बादशाह गजबनाक हुआ, उसने अपने नौकरों को भिजवाया, लश्कर को भिजवाया। पहले नौकर थे, फिर लश्कर गए, और फिर क्या हुआ? जिन्होंने उनको मारा था उनको मार दिया गया, बल्कि उनके शहर को भी क्या कर दिया गया? जला दिया गया। फिर बादशाह कहता है, तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफत तो तैयार है मगर बुलाए हुए लायक। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आज जो लोग कहते हैं ना, हम बुलाए हुए हैं, हम मसीह हैं, हम यीशु हैं, के हैं, उनके लिए ये बात है कि अगर वो बुलाए हुए हैं तो फिर यीशु की आवाज पर कान भी लगाएं। जब उनसे दुआ के लिए कहा जाता है वो दुआ करें। जब दुआ का वक्त घर में होता है तो दुआ करें। जब कलाम पढ़ने का वक्त होता है तो कलाम पढ़े, क्योंकि वो बुलाए हुए हैं। लेकिन अगर बुलाए हुए ऐसा नहीं करते तो फिर वो लोग जो गैर कौमों में से हैं, अब बुलाए हुए की बात नहीं हो रही, अब उनकी बात हो रही है जो बुलाए हुए नहीं है। क्या लिखा है? तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफत तो तैयार है मगर बुलाए हुए लायक नहीं है। बस रास्तों के किनारे नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ। और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिला, क्या बुरा क्या भला, सबको जमा कर लाए और शादी की महफिल मेहमानों से क्या हुई? भर गई। क्योंकि बुलाए हुए इस लायक ना थे तो उन्होंने खुदा के कलाम पर अपनी तवज्जो नहीं की। उन्होंने खुदा की दूसरी आमद, उसकी बादशाही की कदर नहीं की, उसकी फिक्र नहीं की, बल्कि दुनिया के कामों में मसरूफ रहे। कोई खेतों में चला गया, कोई सौदागरी करने चला गया, कोई अपनी दुकान पर चला गया, कोई कहां और कोई कहां। खुदा की आवाज को नहीं सुना। खुदा ने कहा, बादशाह ने कहा, वो मेरे लायक की नहीं है,
जो मेरी आवाज नहीं सुनते, जो मेरे कलाम पर ध्यान नहीं रखते, जो मेरे कलाम को तवज्जो से नहीं सुनते, वो मेरे लायक नहीं। कलाम में लिखा है कि उसने अपने सब नामों से ज्यादा इज्जत अपने कलाम को दी है। उसने इज्जत अपने कलाम को दी है। और जो लोग उसके कलाम को तवज्जो से नहीं सुनते, उस पर अमल नहीं करते, खुदा कहता है फिर वो मेरे लायक नहीं है। खुदा कहता है जाओ, फिर जो भी तुम्हें मिलता है उसको ले आओ। और नौकरों ने वैसा ही किया। उससे जो मिले, क्या भले क्या बुरे, सबको ले आए। और महफिल क्या हुई? लोगों से भर गई। और नौकर रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, बुरे क्या भले, सबको जमा किया। और मैं शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में न था। और उसने उससे कहा, मियाँ तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया है? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। उस पर बादशाह ने खादमों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांतों का पीसना है। हालेलुया। फैसला आपके पास है। क्या आपको खुदा की बादशाही में उसके साथ रहना है, या उस अंधेरी कोठरी में जहां रोना और दांतों का पीसना है? अजीजों, वक्त बहुत नजदीक है। खुदा की बादशाही बहुत नजदीक आ गई है। और अब वक्त है कि जितनी जल्दी हो सकता है आप अपने आप को खुदा की हजूरी में उसके ताबिया कर दें, उसके साथ साथ चले, उसके कलाम पर तवज्जो दे, उसके कलाम को इज्जत दे, और फिर आपकी जिंदगी के अंदर बरकतें आएंगी। छोड़ दें क्या खाएंगे क्या पिएंगे, बल्कि अच्छी कुश्ती लड़ने की तैयारी करें। कलाम में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं अब मैं अब कुर्बान हो रहा हूँ और मेरा कूच का वक्त आन पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। अजीजों, अच्छी कुश्ती लड़े, अबलीस का मुकाबला करें, अबलीस को अपने पैरों तले रौंदे, उसकी परवाह न करें। वो आपको चर्च आने से रोकता है, उसका इनकार करें। खुद भी चर्च में आए, अपने बच्चों को भी चर्च में लाए, अपने बच्चे की तरबियत करें। कलाम में लिखा है तो अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर, वो बूढ़ा होने तक नहीं भूलेगा। लेकिन हम अपने बच्चों की तरबियत वैसे नहीं करते। ये नन्ही सी जान है, मेरा पुत्र अभी 3.5 पौने 4 महीने का है। सुबह जब उठता है मैं उसे कहता हूँ जीसस का थैंक यू किया, वो आगे से हंसता है। उन्हें पता है जीसस कौन है। आमीन। उस दिन रात को यहाँ पे 2:30 बजे कलाम हो रहा था कि वो मुझसे ज्यादा खिदमत करने वाला है, और वो आम पास्टर नहीं है बल्कि वो नबी है खुदा का। खुदा ने कहा ये मेरा नबी है। हालेलुया। और उसे पता है कि यीशु कौन है। जब मैं उसे कहता हूँ हाथ जोड़, तो वो हाथ पहले यूं जोड़ता है फिर यूं करता है, लेकिन नन्हा सा है, वो यूं करता है। उसको महसूस होता है कि बाबा उसे कुछ सिखा रहा है। जो सिखाएंगे वो सीखेगा। आप भी अपनी औलाद को सिखाना शुरू करें। अगर वक्त निकल गया, बच्चे बड़े हो गए, अभी भी वक्त हाथ से नहीं गया, अभी भी आप चाहें तो आप उन्हें रोक सकते हैं। अभी भी आप चाहें तो उन्हें प्यार से, मोहब्बत से आप उन्हें घर बैठा कर कलाम सिखा सकते हैं। आप उन्हें सबत के दिन अपने साथ चर्च में उंगली पकड़ के ला सकते हैं, अभी भी अगर आप चाहें तो। क्योंकि बाप बाप की होता है, औलाद औलाद ही होती है। हालेलुया। अपने लोगों की फिक्र करें, अपनी औलाद की फिक्र करें, अपने लोगों को बताएं कि यीशु के बगैर हम कुछ नहीं है। मकाशवा 19:7 में हम देखते हैं, बाब उसकी 7 में लिखा है, आओ हम खुशी करें और निहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बड़े की शादी आन पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है, यानी कि कलीसिया। हालेलुया।
میں اور آپ جو اس کی بیوی ہے, ہم نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے کیونکہ یسوع کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے اور ہمیں اپنی تیاری کرنی ہے. ہاللیلویا. بادشاہی کا وقت نزدیک آ گیا ہے, لیکن ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ خدا کی بادشاہی اور ہماری تیاری. بات یہ ہے, کلام میں لکھ دیا گیا ہے کہ اس کی شادی کا دن نزدیک آ گیا ہے, اس کی آمد کا دن نزدیک آ گیا ہے, دولہا تیار ہے. اور کیا دلہن تیار ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزو, آج اس کلام کے وسیلہ سے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی کی طرف رجوع لاؤ, برے کاموں سے باز آؤ, بری صحبتوں سے باز آؤ, بری محفلوں میں بیٹھنا بند کر دو. سگریٹ نوشی, شراب نوشی اور ہر اس بری صحبت اگر آپ کرتے ہیں تو اسے بند کر دو, اور اگر آپ ایسی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو وہاں جانا بند کر دو, کیونکہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں. شراب, سگریٹ اور کوئی بھی نشہ ہے وہ آپ کو خدا کی بادشاہی میں جانے نہیں دے گا, بلکہ آپ کو وہاں لے جائے گا جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج اس کلام کے وسیلہ سے آج آپ اپنی دوڑ کو تبدیل کریں اور اس طرح دوڑیں جیسے پالوس کہتا ہے کہ انعام کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ اس انعام کو حاصل کر سکوں جس میں مسیح یسوع میں بلایا گیا ہوں. ہاللیلویا. ہم سب بلائے ہوئے ہیں. آج اس بات کو اپنی زندگی میں لکھ لیں کہ ہم بلائے ہوئے ہیں, اور اگر ہم بلائے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں اپنی تیاری کرنی ہے. اگر ہم بلائے ہوئے ہیں تو ہمیں اپنی بری صحبتوں سے نکلنا ہے. اگر ہم بلائے ہوئے ہیں تو جب خدا کا کلام ہم سے بات کرتا ہے تو ہمیں اس کلام کو اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ خدا کہے کہ تم جو بلائے ہوئے ہو میرے لائق نہیں, اور تمہیں وہاں پہ پھینک دیا جائے جہاں اندھیرا ہے اور رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. اور خدا کے ان کو بلا لو جو نہ بلائے ہوئے ہیں اور وہ اپنے ایمان کے وسیلہ سے خدا کو پسند آ جائیں. عزیزو, آپ ایماندار ہیں, خدا نے آپ کے اندر ایمان کو قائم کیا ہے. پریز گاڈ. اس نے اپنے لوگوں کی زندگی کے اندر ایمان کو قائم کیا ہے, اور اسی ایمان کو اختیار کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے ابلیس کا مقابلہ کریں, وہ آپ سے بھاگ جائے گا اور آپ خدا کی حضوری میں اس کے ساتھ بننے کے لائق بن جائیں گے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے. آمین.